morning, dear students. In the previous class, we have already discussed about the topic of the immune system, in which we have talked about the both types of immunity, that is the innate and the acquired immunity. We have talked about different types of cells that are involved in our or present in our immune system, which were different types of tissue cells. Now we are moving on to the next topic, that is immune system, but here we will be mainly focusing on the things that is included in the immune system. So immune system, it mainly consists of, an immune system of our body is mainly consist of, which components are included in the immune system? So primarily, the first thing included is the lymphoid organs. Our immune system includes specialized organs which are known as lymphoid organs. Apart from lymphoid organs, it includes various types of tissue cells. It includes various types of tissue cells. And along with tissue cells, it includes the soluble molecules which are known as the antibodies. So three things are included in our immune system. One is lymphoid organs, tissue cells, and the antibodies. So already we know what are antibodies. Antibodies are those substances which are produced in our body in response to an antigen. Right? When an antigen gets introduced into our body in response to that antigen is going to produce some proteins which are known as antibodies. What are antigens? Antigens are the foreign substances which when introduced in our body will be responsible for generation of antibodies. So what are antigens and antibodies is already been discussed by us in the previous classes. We have also discussed that which type of antibodies will be produced during which reactions. Okay, or which antibodies will be passed on from the mother to the fetus, which antibodies present in the colostoms, all the things we have already discussed. Now we are talking about the topic of immune system just because we need to understand different types of lymphoid organs. Okay. So immune system consists of lymphoid organs, tissue cells and antibody. What does our immune system mainly play a role in? Immune system plays a very crucial role in it recognizes the antigen, it responds to the antigen, right? The main function is to recognize an antigen. After recognizing, responding to that antigen is the main function of our immune system, right? And protecting the body from any of the reactions. Next, it also plays a role in, allergic reactions as well as autoimmune diseases and organ transplant. The other important roles of our immune system is that whenever we have some allergic reaction, right? Allergic reaction जैसे कि hay fever होता है या फिर अस्थमा है, तो ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस में भी रिस्पॉन्ड करने वाले हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं. अलॉन्ग विद एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारे ही सेल्स, टी सेल्स, सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, एंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन सेल्फ एंटीजन ये खुद के ही सेल्फ एंटीजन्स को डैमेज कर देते हैं. तो ऐसे डिसीजेस को ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है. तो ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी क्या इन्वॉल्व होता है? हमारी इम्यून सिस्टम. एंड थर्ड इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट. ओके, इन सम केसेस हार्ट है, किडनी है, ऐसे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं फ्रॉम अ डोनर टू अ रिसीवर.
तो इन केसेस में भी स्पेशल इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, राइट, ताकि हम उसके सामने रिएक्ट ना करें और वो पर्टिकुलर ऑर्गन हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। तो इसी के लिए भी इम्यून सिस्टम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी ये चीज पता ही है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो तो बहुत सारे हैं। क्या काम करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स? तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो एंटीजन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, पर ये कैसे करते हैं उसे समझने के लिए लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। Now primary lymphoid organs are those organs in which B cells and T cells are going to become mature. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में सबसे पहले B and T lymphocytes are going to mature, right? इनका maturation, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होने वाला है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। They are going to acquire the antigen receptors, right? They are going to acquire antigen receptors। मतलब ये एंटीजन सेंसिटाइज हो जाएंगे, राइट? सिर्फ सेंसिटाइज होने का फंक्शन कहाँ पे हो जाता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सो हियर the B and T lymphocytes are going to form, they are going to mature, as well as they are going to acquire antigenic receptors, means they are going to be sensitized with the antigens for the first time. And after getting sensitized, after getting these receptors, they will move to secondary lymphoid organs. Okay, so then move to secondary lymphoid organs. So then they are going to move to the secondary lymphoid organs. Okay, so that is about the primary lymphoid organs. ठीक है, अब हम primary lymphoid organs में कौन से include होते हैं? तो two of them are included. The first one, that is the bone marrow, right? Bone marrow is the site of production of all blood cells। हर एक तरह के ब्लड सेल्स जहां पे फॉर्म होने वाले हैं वो क्या है? बोन मैरो है। ठीक है, तो बोन मैरो में हर तरह के ब्लड सेल्स बनते हैं और लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन भी कहां पे होता है? बोन मैरो में। बनते तो दोनों ही है, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ही बोन मैरो में ही बनते हैं, पर मैच्योरेशन सिर्फ किसका होता है? बी लिम्फोसाइट्स गेट मैच्योर्ड इन द बोन मैरो। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोन मैरो इज जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द lymphocytes, production of different types of blood cells and maturation of the B lymphocyte. The next one, that is thymus. तो thymus जो है, it is a lobulated lobe-like structure that is located near the heart, or you can say located near the sternum। जो ब्रेस्ट बोन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। एट बर्थ इट इज लार्ज इन साइज, बट देन द साइज डिक्रीजेस। सो विद द इंक्रीज इन एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि थाइमस की जो साइज है
वो रिड्यूस होती जाती है। बर्थ के टाइम पे थाइमस काफी बड़ा होता है जो हार्ट के बहुत ही करीब लोकेटेड है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे थाइमस की साइज जो है वो डिक्रीज होती है। थाइमस जो है इट इज द साइट फॉर टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, राइट। टी सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट होंगे, मेच्योर होने वाले हैं कहां पे, थाइमस में। तो थाइमस इज द लोकेशन वेयर द टी सेल्स आर गोइंग टू बिकम मेच्योर, दे आर गोइंग टू प्रोलिफरेट एंड दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। नाउ फ्रॉम द बोन मैरो एंड थाइमस थ्रू द ब्लड एंड lymph, these lymphocytes are now going to move to the secondary lymphoid organs. So now we are going to talk about secondary lymphoid organs. तो स्टूडेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमने काफी कुछ पढ़ा है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पे अब ये सेल्स प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होने वाले हैं। सो बी सेल्स एंड टी सेल्स proliferate and they are going to differentiate, where they are going to differentiate in the secondary lymphoid organs. In secondary lymphoid organs they are not going to stay for a long time, they are going to move from one lymphoid organ to another lymphoid organ. So moves from one lymphoid organ to another. मतलब पहले हमने क्या कहा कि बोन मैरो और थाइमस में लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो सिर्फ डेवलप होंगे, ठीक है, और बी सेल्स जो है वो मेच्योर बोन मैरो में होते हैं और टी सेल्स मेच्योर थाइमस में होते हैं। मेच्योरेशन के बाद अब इन्हें डिफरेंशिएट होना है, मतलब इन्हें कन्वर्ट होना है इनटू इफेक्टर सेल्स, राइट। इफेक्टर मतलब जो फंक्शनल सेल्स होंगे उनमें इन्हें कन्वर्ट होना है। तो सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी में ये आएंगे थ्रू द ब्लड और थ्रू द लिम्फ। ब्लड या लिम्फ से ट्रैवल होके जब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में अब ये डिफरेंशिएट होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू प्रोलिफरेट एंड दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड होंगे और फिर डिफरेंशिएट भी होंगे। मूव्स फ्रॉम, अब ये वहीं के वहीं एक लिम्फॉइड ऑर्गन में नहीं रहेंगे, दे विल बी मूविंग फ्रॉम वन लिम्फॉइड ऑर्गन टू द अनदर थ्रू द लिम्फ और थ्रू द ब्लड। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? सो वी विल बी इंक्लूडिंग डिफरेंट organs, like the first one is lymph nodes. lymph nodes के बारे में हमने already discuss किया है that these are small solid masses that are distributed in the whole immune system, or you can say lymphatic system. Small solid masses distributed throughout the body. हमारी पूरी बॉडी में रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसे छोटे सॉलिड मासेस होते हैं। लिम्फ नोड्स के बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की है कि ये जो सॉलिड मासेस होते हैं वो लिम्फ को फिल्टर करते हैं और लिम्फ में प्रेजेंट हुए कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन को ये ब्लड में एंटर होने से प्रिवेंट करते हैं। सो दे आर ट्रैपिंग ऑफ द एंटीजन इज बीइंग डन बाय द lymph nodes, right, and filtering of the lymph is done by lymph nodes. The second is the spleen. तो spleen जो है वो एक bean shaped structure है and early embryo में blood cell का production, blood cell formation भी spleen करता है, whereas फिर आफ्टर द बर्थ, राइट, आफ्टर द ग्रोइंग ऑफ द चाइल्ड, फिर ये स्प्लीन का सिर्फ फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं स्प्लीन के अंदर, तो ये एंटीजन को ट्रैप कर लेते हैं। सो सेल्स ऑफ द स्प्लीन आर फेगोसाइटिक, दे ट्रैप द एंटीजन, दे किल द एंटीजन, ओके। सो स्प्लीन इज अ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर अवर स्टमक
और स्प्लीन जो है वो बर्थ से पहले ब्लड सेल प्रोडक्शन का काम करता है। लेटर ऑन आफ्टर बर्थ ये सिर्फ इनमें फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं और फेगोसाइटिक सेल्स की मदद से ये कोई भी एंटीजन जो एंटर हुआ है ब्लड में उसे ट्रैप कर लेते हैं और उसे फिल्टर कर लेते हैं। देन आफ्टर देयर इज पियर पैचेस। पियर पैचेस जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। पियर पैचेस आर masses of lymphoid tissue, mass of lymphoid tissue that is located in the intestine, and it also is responsible for filtering the pathogen, the antigen that has entered in your digestive tract. Okay, so Peyer's patches will be mainly present in the site of ileum. Small intestine में भी जो ileum है वहां पे सबसे ज्यादा Peyer's patches होते हैं. And lastly we also have MALT, which is mucosal associated lymphoid tissue. It is again a mass of lymphoid tissue जो mucosa layer में होता है. Mass of lymphoid tissue which is located in the mucosa layer. कई बार ये सब म्यूकोजा में भी एक्सटेंड हो जाता है और ये हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, तीनों जगह पे ये मासेस जो होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के वो प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंटरी कैनाल, दे आर मासेस ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन अवर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एज वेल एज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. यहाँ पे ये जो लिम्फोइड टिश्यू है वो फिल्टर का काम नहीं करते, इंस्टेड कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करते हैं. यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स दे विल बी ट्रैपिंग एंड किलिंग एनी ऑफ द एंटीजन. सो दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स विच आर अ पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन.